Okay. Today we will discuss about the second one method of the calculation of index number, the method of averaging relative. It is also as like similar the previous method, aggregative method, categorized into two terms, the simple price relative index and weighted price relative index. In the simple price relative index, the simply we can say then when we are just calculating only the index related to the one single commodity, the prices of the one single commodity related to the base year and the current year. And generally we can say the aggregative method was using there, but averaging relatives generally takes the average of the different kinds of the commodity in order to calculate the index number. तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या आएगा इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने का? सी दिस P01 1 by m and sum of the bracket is there P1 by P0 into 100. It means यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है? If you want to calculate the index number, आपको कैसे कैलकुलेट करनी है? देखिए सिंपली सबसे पहले आप सेपरेट सेपरेट वर्क करेंगे. एवरी कमोडिटी P1 by P0 ऑफ एवरी कमोडिटी, सबका ये सेपरेट कैलकुलेट किया जाएगा. Then after that what will you do? Into 100 it will be there. देन जो आपके टर्म्स आएंगे उसका समीशन किया जाएगा. एंड n रेफर्स टू द नंबर ऑफ आइटम. वी विल सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. Say this, the commodities are given here. Unlike in the case of the averaging price method, sorry aggregative method, जिसमें हमने डायरेक्टली क्या किया था, P1 को ऐड कर लिया था, P0 को ऐड कर लिया था, और then we just have implemented it in the formula. But here, what will you have to do? Initially, the commodities are given here. Prices P0 is given here. P1 is given here. Now, see very carefully what you will have to do. आपको हर एक यूनिट का सेपरेट कैलकुलेट करना है इसका. P1 divided by P0 into 100. P1 P0 into 100. P1 P0 into 100. P1 divided by P0 into 100. Okay, it means the separation individual units will be calculated. After calculation of this, what will you do? The sum of all these items, then the formula will be adopted. The simple price index number using price relative, simply the P01 is equal to 1 by n. It means it will be divided by 1 by n, sum of P1 P0 into 100. 595 हमारा टोटल आया था, n हमारा 4 है, it will be the index number. So this is the way, the simple average relative method we can say, average of price relative method. This is the way to find out the simple price relative index. The second one is there, that is the weighted price relative index. Now how will you find out the weighted price relative index? In this simply we will do the main thing, that the simple formula is there, that is the sum of WR divided by sum of W. Sum of WR divided by sum of W. Now the question arises, what do you mean by W and R? Okay, W means the weightage. Weightage will be given already to you in the question, and R refers to price relative. R refers to price relative. R का हमारा मीनिंग ही क्या होता है? सिंपली द प्राइस रिलेटिव. एंड व्हाट डू यू मीन बाय द प्राइस रिलेटिव? हाउ टू कैलकुलेट द प्राइस रिलेटिव? द प्राइस रिलेटिव कैन बी कैलकुलेटेड P1 by P0 into 100, as like in the previous question we have calculated P1 by P0 into 100. Individually you will calculate. Then what will you have to do? The W will be multiplied by these items. Weightage will be multiplied. Then it will be divided by the weightage. See how it can be calculated. Like the commodities are given here A, B, C, D. Weight is given here 40, 30, 20, 10. Price of base year is given 2542. Price of current year is given 4653. Okay. Now the question arises, how you will calculate it?
See, the first one, these informations are given to you. How to calculate the price relative? P1 by P0 into 100, 4 by 2 into 100, 6 by 5 into 100, 5 by 4 into 100, 3 by 2 into 100. This is calculated. Now the individual item will be multiplied by the weight. तो आप क्या करेंगे? weight से इसको multiply करेंगे. Then the sum of the weight will be there. The formula P01 sum of WR divided by sum of W, this is 156. The price index is increased by 56% between the base period and the current period. Okay, this is the second one method, weighted price relative index. These were the two main methods in order to calculate the index number, that the same aggregative method and price relative method. In the aggregative method, we have studied about the simple aggregative method and the weighted aggregative method. In the weighted aggregative method, we have studied about the Lasprais, Purchase and Fisher method. Okay, in the price relative, simply the simple and the weighted price relative method will be used. Now the sum of the index number types are given there. These are mainly three types, which is in your syllabus: consumer price index, industrial price index, and wholesale price index. Okay, consumer price index, industrial price index, and wholesale price index. After that, one of the small topic is there, that is the inflation and index number. Only these topics you will have to do. Okay, the first one is the consumer price index. Consumer price index simply it means कि हम जो human being consume कर रहे हैं उनके survival की कितनी cost आ रही है, क्या prices चल रहे हैं. It is also known as the cost of living index. Okay, it just changed कि क्योंकि consumer जो purchases करते हैं वो retail price पे purchase करते हैं, right? So CPI is also known as the cost of living index and it just measures the changes in the retail prices. कि रिटेल प्राइसेस में कितने चेंज आ रहे हैं. ओके, सो सीपीआई जैसे कि इन्होंने एक स्टेटमेंट गिवन है वहां पर, सी दिस वन स्टेटमेंट इज गिवन, CPI for the industrial worker 2001 is equal to 100 is 270 in May 2020. It means कि जो हमारे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए 2001 में जो चीज 100 रुपीज की थी वो 2020 में 278 की हो गई, राइट? तो इंडस्ट्रियल वर्कर जो है वो स्पेंडिंग कर रहा था 100 रुपीज की इतनी एक बास्केट ऑफ कमोडिटी पे, अब उसको 278 रुपीज चाहिए सेम बास्केट को परचेज करने के लिए, राइट? नाउ द क्वेश्चन अराइज कि इट इज नॉट नेसेसरी, हम ये नहीं कहेंगे कि उसको परचेज करना ही करना है. अब यहाँ पर मतलब मेनली आपकी कैपेसिटी क्या आती है, व्हाट इज द क्वेश्चन अराइज कि क्या उस कंज्यूमर को इस चीज को परचेज करने की कैपेसिटी है या नहीं है. सो सीपीआई हम कैसे मेजर कर सकते हैं? सीपीआई कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ द टू मेथड्स, फैमिली बजट मेथड एंड एग्रीगेटिव मेथड. फैमिली बजट मेथड एंड aggregative method. So cost of living index in the case of family budget method, it is similar to the weighted price relative method. जो हमने weighted price relative method यूज किया है ना, सिमिलर ही मेथड चलेंगे इसमें. सम ऑफ WR डिवाइडेड बाय सम ऑफ W, और R हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? P1 by P0 into 100. Okay, second method is there, that is the aggregate expenditure method. Aggregate expenditure method is also similar to the Lasprais method. CPI, the cost of living index. Aggregate expenditure method में आप Lasprais का method use करेंगे, जैसे कि the sum of P1 Q0 and P1, जैसे कि P1 by P0 into Q1 and Q0 into 100, the same. The Lasprais index was given in the aggregate expenditure, जो mainly है अगर आपको इस क्वेश्चन के अंदर क्वांटिटी गिवन नहीं होती सपोज, देन व्हाट विल यू डू? यू जस्ट टेक द वेटेज एज ए Q0. वेटेज को आप क्या कंसीडर करके चलेंगे? Q0 कंसीडर करके चलेंगे, द क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर. अदरवाइज द रेस्ट वन प्रोसेस विल बी
same, similar. After that, the example is given here. Like similar, you can see items are given, weights are given, base period, current period. तो सबसे पहला आपका स्टेप क्या होगा? You just have to calculate the R. P1 by P0 into 100. Then WR, the similar method, weighted price index. और अगर यही हमें क्या करना है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे करेंगे? सिंपली देखिए, यहाँ पर आपको क्वांटिटी गिवन नहीं है. इन दैट केस यू जस्ट हैव टू कंसीडर द वेट in the form of the Q0. P0, P1, Q0 is given. Initially P0 Q0 is calculated, then P1 Q0 is calculated. Then it will be implemented or put it in the formula. Okay, this is the consumer price index. After that, we can say the next one is there, that is the wholesale price index. Industrial production index of industrial production. सो सिंपली देखिए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में मेनली क्या था कि वो प्राइजेस को मेजर कर रहे हैं, जनरली रिटेल प्राइजेस को. बट इन द केस ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, वी आर नॉट गोइंग टू मेजर द चेंजेस इन द प्राइजेस, वी आर गोइंग टू मेजर द चेंजेस इन द क्वांटिटी. कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्राइस प्रोडक्शन के अंदर मेनली क्या चेक किया जाता है कि क्वांटिटी में कितने चेंजेस आए पहले सालों की बजाय. So the similar formula is there as like the weighted relative index is there. Sum of WR divided by sum of W into 100, but only the difference is there कि पहले हम R कैसे कैलकुलेट कर रहे थे, P1 by P0 into 100, but now in the case of the industrial production, you just have to calculate the R with the help of the quantity of current year divided by quantity of base year into 100. Okay, the simple thing is there. आफ्टर दैट होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसका कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना आपने, सिर्फ इसकी थ्योरी करनी है होलसेल प्राइस इंडेक्स. तो होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या करता है, ये सिंपली जनरल प्राइस लेवल को चेंज करता है, मतलब चेंजेस में मेजर करता है कि चेंजेस क्या आए. और ये पर्टिकुलर कंज्यूमर से रिलेटेड नहीं है, ना ही पर्टिकुलर सर्विसेज से रिलेटेड है. तो होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर मेनली ये चीज आ जाती है कि जनरल जो एक प्राइस लेवल चल रहा है इकोनॉमी के अंदर, वो कितना चेंज हुआ. ओके, देयर इजंट एनी काइंड ऑफ द कि एक कंज्यूमर के लिए कितने प्राइसेस चेंज हो गए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए कितने प्राइसेस चेंज हो गए. द मेन थिंग इज देयर, द चेंजेस इन द जनरल प्राइस लेवल इज देयर, दैट इज द होलसेल प्राइस इंडेक्स. आपको इससे ज्यादा और कुछ इसमें नहीं करना. और जनरली क्या होता है, जो होलसेल प्राइस इंडेक्स का डेटा होता है, दैट इज मेनली यूज्ड फॉर द मेजरिंग ऑफ द इन्फ्लेशन रेट. ओके, कि इन्फ्लेशन कितना है. बाकी आप इसे रीड कर लीजिएगा, इसमें और कुछ नहीं करना चाहता. सेकेंड वन, द लास्ट वन टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज देयर, दैट इज द इन्फ्लेशन एंड इंडेक्स नंबर. सो जनरली जो हमारा WPI है, द होलसेल प्राइस इंडेक्स, it is generally used to measure the rate of inflation. Now the question arises, what do you mean by the inflation? Inflation क्या होता है? So inflation is the increases in the prices from a long period of time. कि inflation को हम क्या कहेंगे? This is a general and continuous increasing in the prices. ठीक है, इसको हमने कैलकुलेट कैसे करना है? जनरली हम इसको जो जितना इन्फ्लेशन बढ़ता जाता है इकोनॉमी के अंदर, उतनी ज्यादा मनी की वैल्यू कम होती जाती है, क्योंकि लोगों को अब ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू परचेज द मनी. सो हाउ टू कैलकुलेट द वीकली इन्फ्लेशन रेट? इसको ध्यान से देखिएगा फॉर्मूला को, एक्स टी माइनस 1 इंटू 100 डिवाइडेड बाय एक्स टी माइनस 1. इट मीन्स कि जिस अब यहाँ पर एक्स टी क्या है, एक्स टी इज द WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स फॉर किस पर्पस के लिए? फॉर द पर्टिकुलर वीक. मतलब कि एक पर्टिकुलर सपोज फर्स्ट वीक है, सेकेंड वीक है, जो भी है. और XT-1 में क्या कहा जाएगा कि होलसेल प्राइस इंडेक्स फॉर द उससे प्रीवियस वीक की, दोनों वीक्स की जो
मतलब कि सपोज एक फर्स्ट वीक की होलसेल प्राइस इंडेक्स है, एक सेकंड की है, तो सेकंड सेकंड की आप एक्स टी यूज करेंगे और फर्स्ट की आप एक्स टी माइनस 1 से यूज करेंगे. ओके, दिस इज द वे टू फाइंड. इट विल बी गिवन टू यू इन द क्वेश्चन ऑलरेडी कि इन्फ्लेशन की रेट को आपको कैसे कैलकुलेट करना है. और इन्फ्लेशन की रेट कैलकुलेट करने के लिए हम सीपीआई को भी यूज कर सकते हैं. सीपीआई को हम कैसे यूज कर सकते हैं, किन टर्म्स में यूज कर सकते हैं कि लोगों की परचेजिंग पावर कितनी है, मनी की परचेजिंग पावर कितनी है और लोगों की एक्चुअल में रियल वेजेस क्या है. देन हाउ यू कैन कैलकुलेट द परचेजिंग पावर ऑफ द मनी एंड द रियल वेजेस ऑफ द पीपल. यू कैन कैलकुलेट इट विद द हेल्प ऑफ द सीपीआई. जैसे कि मनी की वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करनी है, दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय 1 बाय कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स. और रियल जो वेजेस आपने कैलकुलेट करनी है, जो एक मोनेटरी टर्म में पर्सन की वेजेस आ रही हैं, दैट विल बी डिवाइडेड बाय द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इनटू 100. The simple formula is there in order to calculate the inflation rate. इन्फ्लेशन के अंदर आपकी 3 टर्म्स आ जाएंगी: वीकली इन्फ्लेशन रेट, परचेजिंग पावर ऑफ मनी एंड रियल वेजेस. ठीक है, वीकली इन्फ्लेशन रेट में आप सेकेंड वीक माइनस फर्स्ट वीक डिवाइडेड बाय फर्स्ट वीक इनटू 100. और परचेजिंग पावर आप कैसे यूज करेंगे? विद द हेल्प ऑफ सीपीआई, 1 बाय कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स. रियल वेज इज इक्वल टू मनी वेज डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इनटू 100. दिस इज द वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द इंडेक्स नंबर एंड इन्फ्लेशन. कि सपोज देखिए, आपको इन्होंने क्या प्रोवाइड किया है, द सीपीआई is 526 in January 2020. 2000 में वो कितनी थी? 100. और 2020 में कितनी हो गई? 526. तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन पुट हो रहे हैं. व्हाट इज द इक्विवेलेंट ऑफ ए रुपी इन जनवरी? अब बताइए, देखिए सिंपली यहाँ पर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे इस पॉइंट को. सी दिस, 526 हो गई तो रुपी कैसे आ जाएगा? 1 बाय सीपीआई, 100 बाय 526. तो आपके पास मतलब कि जो आपका बेस ईयर था उसमें वो प्रोडक्ट 100 रुपीज था, देन इट विल बी डिवाइडेड बाय 526 इज इक्वल टू 19 पैसा. सेकेंड, अगर मनी वेज कंज्यूमर का 10,000 है तो रियल वेज कैलकुलेट करो. अब कंज्यूमर का मनी वेज 10,000 है तो रियल वेज कितनी हो जाएगी? मनी वेज विल बी डिवाइडेड बाय दीज टर्म्स, 10,000 इंटू 100 बाई 5. इट मीन्स उसकी रियल वेज कितनी है अब, जितने की वो चीजों को खरीद सकता है? 1901. इट मीन्स कि 2000 में जो हमारे 10,000 रुपीज थे, उसकी 2020 में इतने रुपीज की सेम परचेजिंग पावर है. आप ये लगाइए कि 2000 में जो 10,000 रुपए थे और 2020 में 1901 रुपए के बराबर हो गए वो. ओके, देन सपोज द कंज्यूमर वाज गेटिंग 3,000 इन ईयर 2000. क्या ये बेटर होगा? अब देखिए, कंज्यूमर जो है वो 3,000 ले रहा है ईयर 2000 में और उसकी करंट मनी वेजेस कितनी है? 10,000. तो क्या ये बेटर होगा या नहीं? तो 2000 का स्टैंडर्ड लिविंग के लिए उसको कितनी सैलरी चाहिए अब प्रेजेंटली? 3,000 इंटू जो उसके प्राइस के राइजेस हैं डिवाइडेड बाय 100. 15,780 सैलरी उसको चाहिए वो वाला लेवल मेंटेन करने के लिए.